हाय एवरीवन, दिस इज तरुण कंडागरे और आज हमारे साथ आयुषी है जो रिसेंटली VMware में प्लेस्ड हुई है और 2022 बैच से बिलोंग करती है। तो जानते हैं उनकी जर्नी के बारे में, कैसे उन्हें प्रिपेयर किया था VMware के लिए। हाय आयुषी, कैसे हो आप? हाय तरुण। अच्छी हूँ मैं, आप बताइए। सबसे पहले यार जानते हैं कि आपको कंप्यूटर साइंस में इंटरेस्ट कैसे आया। फर्स्ट ईयर आपका कैसे रहा था, सेकेंड ईयर आपका कैसे रहा था, क्या क्या आपने उसमें पढ़ा, क्या मस्ती करी, क्या हुआ था उस टाइम? So initially, my first introduction to computer was when I was in class 9. So I was in ICSE school and computer came in my curriculum in class 9. So at first I was like fully blank. मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या चल रहा है. Before my quarterly exams, which are the first exam, I cried to my uncle who is a software engineer that मुझे नहीं आती कंप्यूटर समझ में. मैं क्या करूँ? I am going to fail in this exam definitely. Then that day told me कि once you start getting computer, it will be easier for you. So I passed that exam जैसे तैसे. And then क्या हुआ कि मैंने एक कोचिंग ज्वाइन करी जहाँ ओके। पे सारे बच्चे आ रहे थे स्कूल के. सो वो सर इतने अच्छे थे, उन्होंने हर कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर करा मेरा कंप्यूटर का. और एट द एंड ऑफ क्लास 9 मुझे बहुत अच्छे से समझ में आने लगे कंप्यूटर्स, फॉर लूप्स, इफ स्टेटमेंट, सब कुछ. एंड देन in class 10th I scored like highest in computer in my school, and in 12th also. Again I opted computer as my optional subject, and other people while opting physical education and Hindi. राइट। So from there I developed interest in computer, and then it was very clear for me that I am going to do BTech in computer science. बट घर में बाहर नहीं भेजना चाह रहे थे मेरे पेरेंट्स, तो थोड़ी ओके। लड़ाई वड़ाई करनी पड़ी. उसके बाद मेरा LNCT में राइट। एडमिशन हुआ. मैंने IIT की तैयारी नहीं की थी. सो LNCT मिला, फिर मुझे, मैंने ज्वाइन किया. फर्स्ट ईयर तो कंप्यूटर रहता नहीं है अपने यहाँ, राइट। लाइक हर जगह हर फील्ड का पढ़ना पड़ता है. तो फर्स्ट ईयर में मैंने सारी फील्ड्स का पढ़ा. एक सब्जेक्ट था C++, वो पढ़ा. तो इट वाज इजी फॉर मी बिकॉज I have already studied Java in 12th till 12th. And then in from second year I started like coding in HackerRank and CodeShop, these type of platforms. And uh, in third year I started like doing things like dynamic programming and backtracking, all such sort of things. राइट। And in when we talk about placements, so मुझे बहुत डर लगता था प्लेसमेंट से राइट। फ्रॉम फर्स्ट ईयर ओनली. तो क्या मैं बहुत ज्यादा डरी हुई थी. पहले हम लोग यहाँ पर असिस्टेंट आई, फिर उसके बाद कॉग्निजेंट आई, सब ट्रेनिंग कराने लगी. तो वहाँ की ट्रेनिंग से भी बहुत फायदा मिला. बहुत सारे सब्जेक्ट्स उन लोगों ने पढ़ाए, लाइक SQL एंड C# एंड डिफरेंट सब्जेक्ट्स. और फिर आई एक कंपनी गामा स्टैक विच वाज अ स्टार्टअप इन इंदौर. एंड आई did the interview and it went very well. So it was my first company, Gamma Stack. ओके। I was first selected in Gamma Stack, and then after that, Oracle came to our campus. ओके। Then I sat in the Oracle campus and did a written exam, and then I also passed that written exam. And in interview also, the interview was kind of easy for me for Oracle interview, and I got selected in that. From that place, I got confidence that yeah, I can go further from there also. Until that point, I was like, I can't have such higher package like VMware. So from there, I got confidence and I set in VMware also. Then VMware written paper went well, but interviews of I listened that there would be 4 rounds of interviews in VMware. It was like scary that 4 rounds are so much, या। and also in all the rounds it was difficult, really difficult than other companies. They focused more on dynamic programming. राइट। तो थोड़ा हमें पहले रिटर्न टेस्ट के बारे में बताओ कि रिटर्न टेस्ट में VMware में क्या क्या पूछा जाता है। रिटन टेस्ट में ऐसा था कि 10 क्वेश्चंस आए थे एप्टीट्यूड और लॉजिकल रीजनिंग के. एंड ओके। देन 30 क्वेश्चंस आए थे टेक्निकल, लाइक फ्रॉम ऑल योर कोर सब्जेक्ट्स. ओके। एंड फिर एक कोडिंग क्वेश्चन आया था जिसमें जावा और C++ में आप कर सकते हैं कोड. देयर वाज नो ऑप्शन ऑफ पाइथन. सो एंड कितने लोग शॉर्टलिस्टेड हुए थे? सो
I guess 36 लोग shortlist हुए थे ओके, from this round. देन And आपके 36 or इंटरव्यू 40, स्टार्ट I हुए? guess. ओके, Yeah, and then हम लोग की interview start हुए. यस। सो We all फर्स्ट got इंटरव्यू में क्या हुआ था, किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे गए थे आपसे? like basic core subjects, and in starting in starting only the interviewer gave me one code. In that code, I was given one label N, and I was given options that if you start from zero level and you have to go till N level, and you have like two options only, you can go one step or two step. Then in how many ways you can reach the level N? This was my first question. Like at first I was not able to resolve that what I have to do. Then after analyzing a lot of things, I came to the conclusion that yeah, we have to use recursion in this problem. ओके, So I used recursion in that, and I solved that problem. After that, she gave me some questions of tree, like she asked me about tree traversing techniques and how you will do this, how you will convert this, and how you will implement tree. And ओके। this was it तो in the फर्स्ट first round. राउंड इज टोटली बेस्ड ऑन डेटा स्ट्रक्चर, राइट? Yeah, सो first and second round both are based on ओके, data structure. एंड सेकंड राउंड में थोड़ा डिटेल बताइए, आपके सेकंड राउंड में कैसे पूछा गया था, क्या पैटर्न था इंटरव्यू का? Second round pattern was same as first round, but there was more discussion on my project also. So ओके, there was a panel of 2 interviewers in second round, and the first question again was on recursion, and then they like going through my CV and asked that आपका project क्या है? मैंने अपना project बताया. फिर most of the time वो प्रोजेक्ट पे ही फोकस करी, प्रोजेक्ट के डिजाइनिंग एस्पेक्ट्स, नेटवर्किंग एस्पेक्ट्स, और लाइक इफ मुझे रियल टाइम में डिप्लॉय करना है इस प्रोजेक्ट को तो मैं क्या करूंगी, क्या चेंजेस ला सकती हूँ, राइट। कैसे लाऊंगी. ऑल्सो सिक्योरिटी एक्सपेक्ट ऑल्सो. सो देयर वाज अ लॉट ऑफ डिस्कशन ऑन प्रोजेक्ट. इंटरव्यू में ये बहुत फेमस क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे चैलेंजिंग पार्ट आपने क्या फेस किया आपका प्रोजेक्ट बनाते टाइम? सो या ये मुझसे ही पूछा गया था. तो मेरा पार्ट था डिप्लॉयमेंट ऑफ प्रोजेक्ट. मैंने मशीन लर्निंग का प्रोजेक्ट बनाया था, और ओके, like deploying those models are not easy thing. So I took the help of, like I was doing one internship also, so I took the help of one of my mentors from them to ओके। how to solve it. सो अब बात करते हैं थर्ड राउंड के बारे में। थर्ड राउंड क्या मैनेजर हुआ था, किस तरीके से वो राउंड हुआ था थर्ड वाला आपका? थर्ड राउंड तक के 10 बच्चे पहुंचे थे. ओके, तो सेकंड फर्स्ट राउंड में 25 क्लियर करे. ओके, थर्ड राउंड में सिर्फ 10 पहुंचे. उसके बाद मैनेजरियल राउंड था थर्ड. तो राइट, उसमें मैनेजर आए. उन्होंने लाइक आई थॉट कि इट विल बी लाइक मैनेजरियल डिस्कशन, बट आल्सो दैट वाज आल्सो टेक्निकल. अगेन दैट राउंड दे आस्क्ड अबाउट माय प्रोजेक्ट. So I will say that during the whole process, main focus was my project because it was kind of different from others. It was like stock market prediction. ओके, So in second interview and third interview, the whole discussion was based on my project. So he asked about my project. Again, I told him that this is my project. He did so many cross questions from me. कि ये कैसे किया, वो कैसे किया. And then he asked about like normal computer science core questions, operating systems and all. ओके। और मैनेजर राउंड में बिहेवियर क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, तो VMware में क्या आपके साथ ऐसा हुआ था? हाँ, पूछे थे. मतलब ज्यादा मुझसे बिहेवियर क्वेश्चन नहीं पूछते, और बच्चों से पूछे भी गए थे, बट मेरा काइंड ऑफ टेक्निकल ज्यादा था मैनेजरियल राउंड. तो मुझसे ये सब चीजें ज्यादा पूछी गई थी. ओके, सो यहाँ पे आपका थर्ड राउंड भी क्लियर हो गया था, तो आप फोर्थ राउंड में गए। फोर्थ राउंड में क्या हुआ था? आई वाज वेरी स्कैर्ड कि एचआर का मेल आएगा या नहीं आएगा. तो आई वाज लाइक प्रेइंग, माय फैमिली वाज प्रेइंग कि आ जाए. एंड देन आया फाइनली. 6 बच्चों का आया मैनेजर लाइक एचआर का मेल. तो I gave my HR, and one thing went wrong in HR. My internet went off ओके, during the interview process. So they told me to sit anywhere else. So मैं दूसरे कमरे में चली गई, and वहाँ पे फैन नहीं चल रहा था because light was not there. So I was like so much sweating at the time of that interview. And उन्हें क्वेश्चंस पूछे, मैंने बताया अच्छे से, बट लेकिन कॉन्फिडेंस थोड़ा सा कम हो गया था उस टाइम पे. नेट भी कम हो गया है और लाइट भी चली गई है, पसीना भी आ रहा है.
तो मैंने दिया और उसके बाद एक दिन में बहुत टेंशन में रही कि अभी इतने आगे तक आ गई हूँ, तो यहाँ से अगर नहीं रिजेक्शन मिलता है तो बहुत बुरा लगेगा। तो फिर बट जब रिजल्ट आया तो लाइक मतलब इतनी खुशी हुई कि they didn't judge me on that basis, that they राइट, judged me on the basis of all the rounds, and मुझे internship plus full time दिया उन्होंने। ओके, दैट्स So ग्रेट। very सो आपने प्लेसमेंट की प्रिपरेशन कैसे की थी आपके कॉलेज टाइम में? see most of the people of my class कोचिंग आते थे, काफी कोचिंग आती थी, राइट, बट सिंस मुझे आता था ऑलरेडी सब कुछ और मैं एलन सिटी के हॉस्टल में ही रहती थी जो कि बहुत दूर है कोचिंग से, या तो मैं ज्यादा नहीं बाहर निकलने का चाहती थी, तो मैं घर पे ही बैठी के ऑनलाइन मोस्ट ऑफ द पढ़ाई मेरी लैपटॉप से ही हुई है। वेबसाइट्स लाइक Geeks for Geeks, HackerRank, I use these for preparation, nothing, ओके, no courses, no paid courses and all, ओके। सो just आप स्टूडेंट्स website। को क्या एडवाइस देना चाहते हो कि उन्हें कैसे प्रिपेयर करना चाहिए? कोई स्टूडेंट अगर फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में, तो एक अच्छी कंपनी के लिए वो कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं? See, consistency is the key. Like आपको रोज कोडिंग क्वेश्चंस सॉल्व करने पड़ेंगे 2 या 3, ऐसा नहीं है लाइक प्रेशर में आके सॉल्व करना है, बट मजे से सॉल्व करो, लाइक यू लव कोडिंग, इस तरीके से आप सॉल्व करो तो मजा भी आने लगेगा उसमें। तो ऐसे सॉल्व करने में क्या हो जाएगा कि प्रेशर फील नहीं होता है, और 2-3 करने में मतलब आता है आराम से। इवेंचुअली एक टाइम ऐसा आएगा कि आप खुद ही 2-3 से ज्यादा पे स्विच हो जाओगे कि आप 4-5 कर लिया, आपको और करने का मन करा, यार ये इंटरेस्टिंग है मैं और करूंगी, तो इस ऐसे करके ना एक कॉन्फिडेंस भी आ जाता है अंदर। तो मेरा तो मतलब ये है कि लोगों को कंसिस्टेंट रहना चाहिए फ्रॉम सेकेंड ईयर ओनली, और अगर आप अगर आप 3rd-4th ईयर में अभी आ भी गए हैं तो टेंशन की ऐसी कोई बात नहीं है, बहुत इंट्रोडक्शन तो हो ही गया होगा कोडिंग से अभी तक, तो आराम से आप लोग कवर अप कर सकते हैं। कोडिंग इज इजी, आई थिंक अगर आप उसको बहुत ध्यान से पढ़ें तो आपको पता चलेगा कि इसमें दिमाग लगाना है बस, तो यही है। और स्पेशली ड्यूरिंग द टाइम ऑफ प्लेसमेंट आपको मतलब बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं खोना है, बहुत कंपनीज आएंगी, बहुत रिजेक्शंस मिलेंगे, ऐसा लगेगा कि बस सब कुछ बचा ही नहीं है आगे, बट सबके साथ अच्छा हुआ, मैंने खुद देखा, मेरे सारे फ्रेंड बहुत अच्छे, स्टार्टिंग में नहीं हो रहा था किसी का अच्छा, बट लेकिन सबका एट लास्ट पर अच्छा हुआ। राइट, और तो वो तो प्लेसमेंट में होता है यार कि बहुत लोग के प्लेसमेंट नहीं भी लग पाते, बट आप देखोगे कि बाद में वो अच्छा ऑफ कैंपस क्रैक कर लेते हैं। तो इट डिपेंड टाइम टू टाइम, कभी भी कुछ भी हो सकता है। मेंटल हेल्थ पे ध्यान देना प्लेसमेंट में इज वेरी इंपॉर्टेंट। राइट, आपको ऐसी स्टेट में नहीं जाना है कि आप अपनी तैयारी छोड़ दो सब कुछ, लाइक देख के यार इतने रिजेक्शंस मिल रहे हैं, क्योंकि मैंने ऐसा किया था बीच में, टाइम पे छोड़ा, 1-2 दिन के लिए हो गई थी मैं ऐसी, मेरा परसिस्टेंट का था और परसिस्टेंट में मैं 7.5 के पैकेज के लिए बैठी थी, एंड एट दैट टाइम आई थॉट 7.5 इज सो मच दैट आई वाज लाइक इट वाज माय ड्रीम to get selected in persistent for 7.5, and I didn't got selected. तो कम से कम 2-4 दिनों के लिए तो ऐसा तो मेरा कि अब कुछ हो ही नहीं सकता है, तो इससे मुझे लगा कि मैं कितना नहीं सोचना चाहिए। बाद में अच्छा हुआ तो फिर यही लगा कि वो तो क्यों इतना टेंशन ले रही थी, सेल्फ डाउट में बिल्कुल नहीं जाना है। राइट। और आप बताइए यार कि आप रिसोर्सेस क्या क्या फॉलो करते थे कोडिंग के लिए या अदर चीज के लिए? No, just normal resources like W3 Schools, Geeks for Geeks, HackerRank, ओके, CodeChef to code कर different. Just most of the time I used to study from Geeks for Geeks, and I also write like written articles on Geeks for Geeks for others. सो थैंक यू आयुषी, आपकी जर्नी बहुत ही अच्छी थी, बहुत मजा आया आपसे बात करके। थैंक यू सो मच। वेलकम, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा।